Okay, good morning all. Let's continue with the class. Let me mark the attendance for a minute. Manjot Singh, mic on है बेटा. Okay, so let's continue. Last time we were discussing about MySQL and its commands. So today we'll practice some more commands. After that, we have done some of the data definition language commands, and today we are going to do some more. So we have done create table, we have done alter table command. Now today we'll come up with your data manipulation language command. जिसमें insert into हमने एक बार कर लिया है. After insert into we'll do update and delete command. So before we start, we must know the difference. I'll just clarify the difference again to you people, that data definition language commands, they are basically used to create, modify or delete the structure of a table including columns. अगर आपको columns पे work करना है, table design पे work करना है, तो हम data definition language commands use करते हैं. And in case you want to modify, remove or add any data present in the row, then we'll use data manipulation language, right? So आज हम DML commands करेंगे. So let's move on to the book. So that's the presentation. Now let's just have a look. Today we'll learn about update command. Now update command is used to update the attribute values of one or more tuples in a table. That means if you want to change any value inside any row in a table, that can be done with the help of update command. Now let's take an example of it. Let's say हमने teacher table पहले किया था. In that same teacher table, if you want to update the salary of the teacher, right, of some particular teacher, like the teacher who has a teacher ID as 101, so we can do it with the help of update command, right? अब हम लिखेंगे क्या? We'll write update, name of the table, teacher in this case, set keyword लगाएंगे, then write the changes that you want to make. Salary is equal to 55,000, right? तो उसके बाद where clause लगाना जरूरी है. अगर आप where नहीं लगाते हो, यहीं पे semicolon लगा के रन करते हो कमांड, तो वो क्या करता है, सैलरी कॉलम के अंदर जो जो वैल्यूज हैं सबको 55,000 कर देगा. बट इफ वी वांट सम पर्टिकुलर रिकॉर्ड टू बी चेंज, जैसे मुझे वही चाहिए जहाँ पे टीचर आईडी 101 है, तो देन आई विल राइट वेयर और कॉलम का नाम इक्वल टू जो कंडीशन देंगे, टीचर आईडी इज इक्वल टू 101. सो इट मींस इट विल ट्राई टू सर्च दिस टीचर आईडी फर्स्ट. टीचर आईडी जहाँ उसको 101 मिली, उसके सैलरी के कॉलम में वो 55,000 चेंज करके 55,000 डाल देगा. तो दैट पर्टिकुलर रिकॉर्ड विल बी अपडेटेड नाउ. जो भी वैल्यू पुरानी वैल्यू है उसको रिमूव करके न्यू वैल्यू 55,000 विल बी एडेड देयर. So ultimately what we are doing, we are changing the record of one particular person in a table, means we are changing the row value. This is a data manipulation language command which works on the rows. Fine. Then we can also update a value. ये हमने किया था कि वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, जो भी सैलरी की वैल्यू थी उसको 55,000 में रिप्लेस कर दिया. Now if you want to add some value into that particular previous value, जैसे मान लो I want to increase the salary of the teachers Shanaya by 5,000, so I want to increase. now increasing कैसे लिखेंगे, उसके लिए जो हम लोग कंडीशन देंगे, will write salary is equal to salary plus 5,000. So what this will do, this will add 5,000 to the salary, the value of the salary column, right? And whatever answer comes after adding 5,000, it will again assign to the salary. सैलरी के अंदर मान लो 10,000 था, तो 10,000 में 5,000 प्लस हुआ, 15,000 हो गया. 15,000 is now the value of salary, right? And again we need to specify the condition
बिकॉज हमने चेंजेस सिर्फ वहां करनी है जिसका टीचर नेम शनाया है. So what we are going to do is we'll put the condition where teacher name is equal to Shania. Right? If you don't write this where clause, what will happen? It will change the it will increase the values of the salary column by 5,000 in all the values of that particular column. तो सैलरी के सारी वैल्यूज को 5,000 से ऐड कर देगा. Fine. So this you have to keep in mind. Joban, your mic is on. Please switch off. So that's it. This will change the value in that particular column. Right? Then the next command is delete command. In delete command, now this is again data manipulation language command which is used to delete the row of a table. Now we are again dealing with the row. तो ये data manipulation language command है. Now this will delete the row of a table. Right? So how do we write this? Delete from table का यहाँ पे from लगाना जरूरी है. Otherwise we normally do not do it. ठीक है? तो delete from लगाना जरूरी है. Delete from name of the table where, then put the condition. Like if you want to delete the full record of the teacher whose teacher ID is 101, we'll write delete from teacher where teacher ID is equal to 101. जहाँ पे teacher ID की वैल्यू 101 है, पूरी की पूरी रो जो है वो डिलीट हो जाएगी. राइट? और अगर हम ये where clause नहीं लगाते तो क्या होगा? If you write delete from teacher semicolon, तो ये क्या करेगा? उस टेबल के अंदर जो कुछ भी वैल्यू है, जो कुछ भी रिकॉर्ड है, सारी के सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे. So this will delete all the rows from that table. But remember, delete command does not delete the entire table. Table delete नहीं होगा, table के अंदर की values delete हो जाएंगी. Right? So the question may come in exam. What is the difference between delete command and drop table command? So delete command removes all the values of the table and the table is not deleted. And drop table command will delete the entire table. Table भी remove हो जाएगा drop table से. So your drop table command is data definition language commands. वो पूरे table पे work करता है. And delete command is the data manipulation language commands, DML command, because वो सिर्फ row को remove करती हैं या values को remove करती हैं. Right? तो ये ध्यान रखना delete और drop के अंदर difference. Then we have select statement. Now before doing select, let's do some practice. As you can see, I have already opened one database. I'll put select star from student. ये हमने table पहले बना रखा है. So these are the records that you can see over here. Right? Now I want to change the marks of the student whose name is Amit. So what I'll write, update name of the table student, set marks is equal to, मान लो इसका 80 से हमने 90 करना है. Marks is equal to 90 where name is equal to Amit. Remember Amit जब आप लिखोगे A is capital over there, so you have to write A in capitals only. अगर आप small लिखते हो तो error आने के chances हैं. So what it will do, it will replace that 80 marks of Amit with the 90 marks now.
Let's see the change. Query okay means changes has been done. I'll put select star from student again. Now you can see this 80 has changed into 90, right? So the conditions can be different also. Like in case you want in place of this Amit, name is equal to Amit, you can also write where serial underscore number is equal to 2. तो मैं अब 90 तो हो चुका है चेंज, तो हम 90 की जगह पे यहाँ 99 कर देते हैं. Click OK. Now if you see the statement now, Amit serial number 2 वाली जो वैल्यू है 99 हो गई 90 से. राइट, तो कंडीशंस आप अपने हिसाब से दे सकते हैं. Fine. Now let's see what changes are done if we don't write this where condition. If you simply write update student set marks is equal to 90, में कोई where condition नहीं थी. Query okay. See, सारी values 90 हो गई. If you're not giving condition statement, then all the values in that particular table will be changed. Right? Okay, now let's practice delete command. You write delete from name of the table is student. Where name is equal to Jesh. Query okay. See the table. तो ये जेश वाला रिकॉर्ड यहाँ से रिमूव हो गया. 7 number serial number 7 has been removed. Right? And again if you write delete from student and semicolon press enter, तो ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स जो जो वैल्यूज हैं सब रिमूव हो जाएंगे. टेबल रिमूव नहीं होगा but records will be removed. Right? So we are not going to practice because हमें records दोबारा डालने पड़ेंगे otherwise. Right? Now let's move on to select statement. Now we are going to start with select statement. This statement is very important. The reason is that many of the questions which finally they come in the exam are based on select statement. बहुत सारे questions आते हैं. Reason ये है कि select statement में बहुत variations हैं. Right? Okay. Before we start this, we must know what select statement does. Now it is used to retrieve information from our database. Now with the help of select statement, we can take out some information from a database. But take out information means that we are using a table's values and creating some temporary kind of table. हम एक table से value उठाएंगे, एक temporary table बनाएंगे जिसमें वो values रखेंगे. This doesn't mean कि आप table में changes कर. Table में changes नहीं होंगे. We are just using the values of the table, right? So select statement never do any kind of change in the table. Remember this. कि table में कोई change नहीं होगी. Table से हम सिर्फ values को use कर सकते हैं. Right? Now what is the syntax of the command? हम पहले लिखते हैं select keyword, उसके बाद list of attributes. Attributes मतलब columns के नाम. From table का नाम या tables की list. Multiple tables से भी हम values ले सकते हैं. फिर where condition देनी पड़ती है. ठीक है? This is optional where condition. इसकी जो first example है हम already कर चुके हैं. Select star from teacher. If you write select star from teacher, star means it will display all the columns from teacher. अगर हम यहाँ teacher पे end करते हैं, semicolon लगा के end करते हैं, तो it will display this complete table. अब हमारे पास example में table है
टीचर्स, इसमें टीचर नाम का टेबल है, वी हैव 7 columns and some values into it, right? Now if I put a where condition here, where teacher id is equal to 101, तो क्या होगा? तो 101 को वो मैच करेगा। 101 जो है टीचर आईडी सिर्फ फर्स्ट रिकॉर्ड में है, तो फर्स्ट रिकॉर्ड की वैल्यूज सारी की सारी डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज द यूज ऑफ वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज से हम लोग कंडीशंस दे सकते हैं फॉर showing some selected kind of data. Another example of it, same table has been taken, the query has been changed. Select first name comma last name from teacher where salary is greater than 50,000. इसमें पहले तो फेयर कंडीशन वेयर कंडीशन मैच करेंगे, सैलरी जो है 50,000 से ज्यादा होनी चाहिए। सो लेट्स चेक इट। फर्स्ट केस में सैलरी 50,000 है, बट वी नीड मोर देन 50,000, so this will not touch. This is less, this is less, this is less, this is more, this is more, 54,000. So इसकी क्या चीजें डिस्प्ले करनी है, that you have to see from the select statement. Select first name comma last name. तो 54,000 का फर्स्ट नेम है तरन्नुम और लास्ट नेम है मलिक, तो ये दो चीजें डिस्प्ले हो जाएंगी, तरन्नुम और मलिक। नेक्स्ट इज 50,000, नो विल नॉट डू इट। 52,500, 52,500 में वैल्यू नेम फर्स्ट नेम इज पुनीत एंड लास्ट नेम इज नल, तो नेक्स्ट हो गया पुनीत और नल। उसके बाद 50,000 से ज्यादा लास्ट टू वैल्यूज हैं, यहाँ पे विनीता घोष और वंश और नल, ये वैल्यूज डिस्प्ले। So what we are going to do over here is, यार ये drawings बनाना बंद करो, why are you wasting my time? So first of all we'll match the where condition, उसके बाद हम जो जो query में display करना है that will be displayed. अगर star है तो सारी record ही दिखानी है, अगर selected है तो selected देंगे। ठीक है, so this is one type. Now coming on to the next part, यहाँ पे हमने select teacher ID, first name, last name, department number, 4 columns we are displaying. तो इसी ऑर्डर में आपको टीचर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डिपार्टमेंट नंबर 4 चीजें डिस्प्ले करनी है। कंडीशन देखिए, कंडीशन है डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 4 और डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 7। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ और हियर? और का मतलब है इन दोनों में से एक। If or is there, then we have to specify that this particular condition should also be true and the second condition should also be true, right? So not should also, both should not be there, any one of them should be true. तो डिपार्टमेंट नंबर या तो 4 हो या डिपार्टमेंट नंबर या 7 हो, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हम रिकॉर्ड को पिक कर लेंगे। तो लेट्स सी डिपार्टमेंट नंबर जहाँ पे 4 है, ये पहले वाले में 4 आ गया, थर्ड रिकॉर्ड में। तो इसका टीचर आईडी 103, फर्स्ट नेम सुरभि, लास्ट नेम बंसल और डिपार्टमेंट नंबर 4, पहला रिकॉर्ड ये हो गया। उसके बाद उसके नीचे फिर से 4 है, तो 104 मेघा खन्ना 4, नेक्स्ट रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद 4 कहीं नहीं है, 7 है, 7 किसका है? 109 नेहा सिंह and 7, so we'll get that record. So that means जहाँ पे 4 है और जहाँ पे 7 है, दोनों की दोनों वैल्यूज, दोनों को दोनों रिकॉर्ड्स को हमने चेक करना है। Fine, so we'll get the answer. Okay, so this is the use of or. और में दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई होनी, दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे और की जगह पे एंड होता, लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहाँ पे हमने स्टेटमेंट चेंज की है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर वेयर डिपार्टमेंट नंबर्स इक्वल टू 4, स्टार मींस वी हैव टू डिस्प्ले एवरीथिंग, वेयर डिपार्टमेंट नंबर्स इक्वल टू 4 एंड जेंडर इज इक्वल टू F. So here we have to specify both the conditions should be true. डिपार्टमेंट नंबर 4 होना जरूरी है और
उसी डिपार्टमेंट नंबर 4 के साथ उस रिकॉर्ड के अंदर जेंडर में F लिखा होना जरूरी है। दोनों चीजें स्पेसिफिक जो जो ट्रू होगी तभी आपका रिकॉर्ड काउंट होगा। तो सी है डिपार्टमेंट नंबर 4 इज देयर इन द थर्ड रिकॉर्ड और जेंडर F भी है, दोनों कंडीशंस फुली सेटिस्फाइड हैं, तो ये पूरी की पूरी रो डिस्प्ले करते हैं, राइट। नेक्स्ट केस में 4 उसी के नीचे है और यहाँ पे भी जेंडर F है, तो ये रिकॉर्ड भी पूरा पिक हो जाएगा। देन आफ्टर दैट देयर इज नो केस ऑफ 4, F तो कई जगह पे है बट 4 डिपार्टमेंट नंबर नहीं है, तो यहाँ दोनों चीजें मैच होगी, सिर्फ वही वाले रिकॉर्ड हमने पिक करने हैं। ये है एंड का यूज, राइट। Then we have distinct keyword. Distinct keyword is again very important. Reason is that कि हम पहले ये स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेटमेंट में कर क्या रहे हैं, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम टीचर वेयर जेंडर इज इक्वल टू M। तो व्हाट वी आर डूइंग इज जेंडर जहाँ देख रहे हैं M, उसका डिपार्टमेंट नंबर जो है वो हम डिस्प्ले कर रहे हैं। फर्स्ट केस में M इज हेयर, इसका डिपार्टमेंट नंबर 2 है, नेक्स्ट M पे डिपार्टमेंट नंबर 3 है, नेक्स्ट M पे 1 है, फिर 8 है और फिर लास्ट में फिर से 2 है। तो M वाली 5 वैल्यूज हैं तो 5 डिपार्टमेंट नंबर्स हमारे डिस्प्ले हो गए। बट इफ यू सी देयर, यहाँ पे 2 जो डिपार्टमेंट नंबर है वो 2 बार आ रहा है, फर्स्ट में भी लास्ट में भी। इफ यू वांट टू अवॉइड दिस रेपिटेशन, अगर आप ये रेपिटेशन को खत्म करना चाहते हो, then what we need to do is you have to add up this distinct keyword before the name of the column. Select distinct department number लिखेंगे तो ये repetitions को खत्म करके एक ऑर्डर में सारे डिपार्टमेंट नंबर को दे देगा। So this question comes a lot of time, it is asked many times in exam. Distinct कौन सा कीवर्ड है जिससे रेपिटेशन खत्म होती है, and how do we apply, where do we apply? तो सेलेक्ट के बाद लिखते हैं, कॉलम नेम से पहले लिखते हैं, राइट। So that's a very important part. Then we have like keyword. Before we go further, I'll just show you these statements. Select distinct marks from student. डिस्टिंक्ट मार्क का मतलब है रेपिटेशन नहीं करनी है, तो 90 रिपीट नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक ही बार 90 आना चाहिए, तो विल गेट 90 वन टाइम ओनली। अगर हम डिस्टिंक्ट हटा दें तो वो पूरे मार्क्स के कॉलम्स को डिस्प्ले करेगा। दैट्स द यूज ऑफ डिस्टिंक्ट, राइट। अगर हम लिखें सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट where marks is greater than, मार्क्स तो सबके 90 है, तो हम सीरियल नंबर ले लेते हैं, सीरियल नंबर is greater than 4. So it will show us the name of all the people where serial number is 4. We see 4 से ऊपर मतलब 5 6 7 8 9, 5 6 8 9, तो ये राजेश, मजेश, नीता, नीतू, तो ये 4 नाम हो जाएंगे, राइट। एंड और name is equal to
राज। अब क्या हुआ, राज भी ऐड हो गया। वो क्यों? बिकॉज और कंडीशन है, या तो सीरियल नंबर 4 से बड़ा हो या नाम राज हो, तो दोनों में से एक कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो हमारे 4 रिकॉर्ड्स में तो ग्रेटर देन 4 वाले कंडीशन क्वालिफाई करती है। नेम इज इक्वल टू राज में ये वाली कंडीशन फॉलो करती है कि नेम राज किसमें है। तो ये 5 रिकॉर्ड शो हो जाएंगे। ठीक है, राज इज ऑल्सो एडेड नाउ। ठीक है, और अगर हम इस और की जगह पे एंड कर दें, इट विल गिव यू एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब कि राज नेम में सीरियल नंबर जो है 4 से बड़ा और राज नेम दोनों किसी भी ऐसे रिकॉर्ड में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। ठीक है, हम एक काम करते हैं, एम्प्टी सेट का मतलब कि देयर इज नो सच कंडीशंस अवेलेबल। आई विल पुट लेस देन साइन, लेस देन 4 करते हैं। नाम मैंने ओ हटा दिया, लेस देन 4। अगेन इट इज एम्प्टी सेट। हम ऐसा करेंगे, सीरियल नंबर कर लेते हैं greater than 4 and name is equal to Rajesh. So here what we have done is serial number 4 से बड़ा चाहिए और name राजेश चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए। तो सीरियल नंबर 4 से बड़ा इसमें है 5 वाले में, यहाँ पे भी राजेश है बट सीरियल नंबर 4 से छोटा है, तो ये वाला राजेश पिक नहीं होगा, ये वाली वैल्यू पर राजेश पिक हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल and this distinct is about many of the students have left the class. Don't worry, I'll change the attendance. बीच में छोड़ के जा रहे हैं ना, they will be mark absent. Okay, moving further, now the next thing is like keyword. A like keyword is generally used where we put some text. जैसे I want to show the names, all the names of the teachers जिनके नाम S से शुरू होते हैं. Right, so if you want to display all the names which starts from S letter, then what do we need to write? We'll write select first name, name of the column, like in this case first name show करना है सिर्फ from teacher, where first name like S percentage. like कीवर्ड क्या करेगा, S percentage का मतलब है शुरू में फर्स्ट लेटर S हो, उसके बाद परसेंटेज मीन्स कोई भी कुछ भी कैरेक्टर्स हो किसी भी लेंथ के. ठीक है, लेंथ डजंट मैटर, सो इट शुड ओनली स्टार्ट फ्रॉम एस. जैसे सौरभ के केस में देखो यहाँ पे एस है और बाद में 6 कैरेक्टर 6 अल्फाबेट्स हैं, 6 लेटर्स हैं. सुमिता के केस में एस से शुरू हो रहा है और 5 लेटर्स है. सुरभि में भी 5 है, शनायान में भी 6 है. तो लेंथ आगे कुछ भी हो, बस स्टार्ट एस से हो रहा हो. तो इट विल ट्राई टू मैच सच कंडीशंस, और जहाँ पे ऐसे मैच हो जाते हैं उन नेम्स को वो फर्स्ट नेम्स को डिस्प्ले करना है. You will get this output, right? But in case I want fixed number of characters, like in place of percentage, I want a format where सिर्फ वो नाम आए जो एस से शुरू होते हैं और उनके बाद 4 ही कैरेक्टर्स हैं या 5 ही कैरेक्टर्स हैं या 6 ही हैं. एक फिक्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए, तो हम यहाँ परसेंटेज की जगह पे अंडरस्कोर सिंबल यूज करते हैं. ईच अंडरस्कोर इज फॉर ईच कैरेक्टर. जितने आपको कैरेक्टर्स एस के बाद चाहिए उतने अंडरस्कोर आपको लिखने पड़ेंगे. लाइक दिस, वेयर नेम फर्स्ट नेम लाइक एस एंड देन वी हैव एंटर्ड 5 अंडरस्कोर्स. तो वो नाम जिसके जो एस से शुरू होते हैं और एस के बाद 5 अल्फाबेट्स के हैं, सिर्फ वो नाम डिस्प्ले होंगे. जैसे सुरभि एंड सुमिता इज ओनली डिस्प्लेड. जो शनाया है वो नहीं होगा, सौरभ भी नहीं होगा. रीजन क्या है, शनाया में एस के बाद 6 कैरेक्टर्स हैं और सौरभ में भी, राइट, बट वी नीड ओनली 5. तो
अगर आपको फिक्स्ड नंबर ऑफ कैरेक्टर चाहिए, वी यूज अंडरस्कोर फॉर ईच कैरेक्टर, एंड इफ यू डोंट वांट फिक्स्ड नंबर देन यू कैन पुट डॉलर साइन आल्सो। तो ये दो जो हैं आपके लाइक कीवर्ड के दो रिजर्व्ड वर्ड्स हैं, रिजर्व कैरेक्टर्स हैं दैट यू कैन यूज, राइट। इम्पॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज दैट जनरली बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे आपको कॉलम नेम दोबारा लिखना पड़ता है, दिस वी मिस समटाइम। सेलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम टीचर वेयर लाइक फॉर एस परसेंटेज, वेयर लाइक के बीच में कॉलम का नाम दोबारा लिखना पड़ेगा जिस कॉलम के अंदर हम मैचिंग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ भी आ सकता है, here we have to put the name of the column in which we are matching। जैसे हम पीछे करते थे where first name या फिर marks greater than this, column name देना जरूरी है, column name मिस कर जाते हैं sometimes, so this you must keep in mind, fine। Okay, now the next important thing is order by command। Order by is to arrange the data in alphabetical or ascending order or descending order also, right? By default, if you simply write order by somewhere, so we'll get everything in ascending order। अगर आपको descending order चाहिए तो आपको बीच में DESC लिखना होगा। By default order is ascending always। लिखना क्या है, select first name comma last name from teacher, order by first name comma last name। फिर ऑर्डर बाय के बाद में कॉलम स्पेसिफाई करना पड़ता है किस कॉलम के ऑर्डर में हमें लगाना है। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट नेम, हम फर्स्ट नेम के कॉलम्स को ऑर्डर वाइज लगाएंगे, ठीक है। ऑर्डर मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और ये हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लगता है। अगर आपको डिसेंडिंग चाहिए तो आप यहाँ पीछे DESC लिख दो नेम के बाद सेमीकोलन से पहले, तो डिसेंडिंग में हो जाएगा, राइट। तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो गया। अब यहाँ पे हमने ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम लिखा है, अकेला फर्स्ट नेम नहीं लिखा। अकेला फर्स्ट नेम लिखोगे तो सिर्फ फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंगली हो जाएगा। अगर साथ में कॉमा लास्ट नेम भी लिखा है तो देन दैट मीन्स कि इन केस फर्स्ट नेम में कोई वैल्यू सेम है तो हम लास्ट नेम को रेफर करेंगे, फिर लास्ट नेम के अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंगली चलेंगे, राइट। So this is how we can arrange anything into order। So you can also put this in order by teacher's ID। So this is already in ascending, so we'll get the names in that order, fine। Or you can also do it in department number order, so that can also be done। If you type DESC after the complete line, then we'll get everything in descending order। ये descending का example है। Select department name from department, order by department name DESC। तो ये डिपार्टमेंट नेम को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा के और डिपार्टमेंट नेम ही डिस्प्ले करेगा। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, देखो A B वाले नीचे हैं, B C C C E, अल्फाबेटिकल रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर, राइट। और अगर आप डिपार्टमेंट नंबर करना चाहते हो, यू कैन पुट डिपार्टमेंट नंबर ओवर हियर। बट रिमेंबर यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हम यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर लिखें और यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम लिखें तो हमने चेक करना है डिपार्टमेंट नंबर को, डिस्प्ले करना है डिपार्टमेंट नेम को। तो विल अरेंज दिस इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर जैसा भी है। अगर DESC है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, और ASC है तो असेंडिंग ऑर्डर में, और डिस्प्ले करेंगे हम उनके डिपार्टमेंट नेम्स को, राइट। सो दिस टेबल इज टीचर टेबल, ये गलत है, टीचर टेबल नहीं है, डिपार्टमेंट टेबल है। तो टेबल इज रॉन्ग, ठीक है। सो ये ध्यान रखने वाली बात है कि आप जिस ऑर्डर में आप लगा रहे हो, डिस्प्ले कुछ और कर रहे हो, तो हम उस ऑर्डर को लगाने के बाद हम शो करेंगे, ठीक है। Okay, so this is again one more example। Select first name, last name, department number from teacher, order by department number ASC,
फर्स्ट नेम DESC, लास्ट नेम DESC। पहले हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंट नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लगाया, फिर जहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर की वैल्यू सेम होंगी उसके बाद फर्स्ट नेम को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, राइट। और यहाँ जहाँ पे फर्स्ट नेम भी सेम होगा वहाँ पे हमने लास्ट नेम को डिसेंडिंग ऑर्डर में देना है। So we'll start by first thing and we'll continue by next thing. तो पहले डिपार्टमेंट नंबर ये 1 1 सेम हो गए, ये असेंडिंग ऑर्डर में लग गया सारा। अब ये दोनों सेम है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट नेम चेक करेंगे, ये होने चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में। शनाया ऊपर आ जाएगी, नमित नीचे आ जाएगा। अगर ये असेंडिंग होता तो नमित ऊपर आता, शनाया नीचे आती। और अगर यहाँ पे भी सिमिलैरिटी आती है तो फिर हम नेम को रेफर करेंगे और इसको डिसेंडिंग में लगाएंगे, मतलब जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बाद में आता है वो ऊपर आएगा और जो पहले आता है वो नीचे आएगा, ठीक है, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर। फाइन, so this is how the things are working. नल वाला मैं तुम्हें बाद में दिखाता हूँ। Let's do some more practice. Okay, let's see the like keyword first. Select name from student where name like inverted comma s percentage inverted comma close semicolon, right? So all the names starting from s, हमारे टेबल में s से है ही नहीं, r ले लेते हैं। So we'll get the names of all the names starting from r। और अगर हम यहाँ परसेंटेज की जगह पे अंडरस्कोर 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 मैंने 3 बार लगाया, तो 3 बार तो है ही कोई नहीं, 2 बार वाला है तो 2 लगा लेते हैं। तो राज will be displayed only because we have r and 2 characters after r, उसके लिए एक ही केस है। फाइन। So I'll put the table again in order so that we can see, और हम इसको ऑर्डर बाय भी लगा के देख सकते हैं। ऑर्डर बाय सीरियल अंडरस्कोर नंबर DESC, तो मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा रहा हूँ। अब ये 9 ऊपर चला गया, 1 नीचे चला गया, ठीक है। और अगर मैंने सिर्फ नेम शो करने हैं तो ये मैचिंग अरेंज वो सीरियल नंबर से कर रहा है और डिस्प्ले सिर्फ नेम कर रहा है, राइट। तो दिस वी हैव टू कीप इन माइंड, यहाँ सीरियल नंबर मैच होगा और डिस्प्ले सिर्फ नेम कर रहे हैं, तो मैचिंग सीरियल इसको ऑर्डर में लगाना है, नेम को ऑर्डर में मत लगा देना, ये ध्यान रखना है। फाइन, चलो that's it from my side. I'll end up now. So just go through all these things yourself, try at home.